تو آپ کو لگتا ہے صحیح ہے جو خواتین بالکل ماں بننے کے بعد چھوڑ دیتے اپنے آپ کو؟ بہت ہی غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. میں نے دیکھا ہے یہ اتنی ہو گئی ہیں چوڑی، سر جھاڑ منہ پھاڑ، جس حلیے میں ہے اسی حلیے. کیوں بھائی؟ زندگی تمہیں بھی ایک بار ملی ہے یار. بچہ پیدا کر لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بالکل ماسی بن جاؤ؟ غلط بات. اچھا مجھے بتائیں آج کل تو لڑکیاں جو ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے بات بھی کرتی ہیں. اب آپ کو ہوا تھا ویسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن؟ ہاں ہوا تو تھا. سب کو ہوتا ہے. اور کون سے بچے کی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہر بچے کی بات ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں مجھے تو چاروں دفعہ ہوا تھا. سب کو ہوتا ہے, یہ ایک بڑی نارمل سی چیز ہے. اس پہ نکلنے میں آپ کو کس نے ہیلپ کی تھی؟ میری بہن نے, ہاں بڑی بہن نے بہت ہیلپ کی تھی. اور وہ سمجھاتی تھی کہ بھائی کیا مصیبت ہے یار, ہوتا ہے سبھی کے بچے ہوتے, اتنا اس کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہوا ہے, اور ہوا بنایا ہوا ہے تو نہ کرتی پیدا, بچہ کیوں پیدا کیا. تو یہ میرا خیال ہر خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں یہ نارمل ہے. اصل میں ہم نے پہلے تو کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ایموشن ہے, کیا یہ تو پوسٹ پارٹم آپ کو اب سمجھ آیا ہے نا. پہلے تو وہ ایموشن ہی نہیں پتا تھا, بس یہ ہوتا تھا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے, رونے کا دل کر رہا ہے. آپ کو ہمارے پاس سمجھاتے نہیں ہے, جو بڑی بوڑھیاں یہ کہنے کے بجائے نا کہ اپنے آپ کو چھوڑ دو. اور ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے, اور پہلے زمانے میں بچے بھی زیادہ تھے, دیکھو ہم نے تو 11-12 بچے پیدا کیے. ان کو یہ سمجھانا چاہیے. بات کر رہے ہیں آپ, مینوپاز نہیں پتا بہت ساری عورتوں کو. مینوپاز از اے تھنگ which is going to happen, ہر عورت کے ساتھ وہ ہوگا, اور اس پہ چپ کرا دیا جاتا تھا. بھائی دیکھیں آپ کی یہ کتنی بار ہے کسی باتیں کر رہی ہے ہوتی ہیں. جیسے کچھ خواتین جو تھوڑا سا 50s کراس کرتی ہیں, obviously I'm a hairdresser, تو ہماری تو کرسی کا میجک یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے حال وہ کر لیتے ہیں. تو وہ مجھ سے کبھی کبھی پرابلمس ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ ہو رہا ہے, میری طبیعت ایسی ہو رہی ہے. میں ان کو کہتی ہوں آپ کہیں پیری مینوپاز میں تو نہیں چلے گی. وہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ارے پھر بیٹھ کے ان کو سمجھاؤ کہ اچھا مینوپاز یہ ہوتا ہے, آپ پیری مینوپاز یہ ہوتا ہے, اس میں آپ کو ایسے ہاں ایسے ہی فیل ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑی نیچرل چیز ہے, بہت. تو جیسے پوسٹ پارٹم ہے سیم چیز ہے, وہ تو ہارمونل چینجز تو آپ کے اندر سے آئیں گے. ہر وقت ہوتے ہیں نا, جب آپ بیبی کے بعد بھی, ڈیلیوری کے بعد بھی آپ کے ہارمونل چینجز ہی ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی باڈی اپنا, آپ کا برین ہر چیز اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے, اور آپ کی باڈی چینج ہوگی ایک دم سے. آپ اس کہتے ہیں یار یہ باڈی تو میں اون ہی نہیں کرتی تھی, یہ تو میری باڈی, کیونکہ ایسا لڑکیوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو آپ فوراً ہی ویسے بیوٹی کے بڑے فیک اسٹینڈرڈ ہیں. ایک دم تو آپ نہیں کو ویسے ہوتا. ہوا تھا پوسٹ پارٹم ڈپریشن؟ ہاں مجھے وہی تو میں کہہ رہی ہوں, مجھے ہوا تھا, لیکن مجھے یہ میں شیئر کرتی تھی, مطلب اپنی امی سے پوچھتی, امی کہتی بیٹا ہوتا ہے کوئی بات نہیں. امی نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ کی باڈی جو ہے, آپ کے اندر سے ایک جان بنی ہے دوسری, تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی. آپ کے ہارمونل چینجز بھی ہوں گے تو اٹس نارمل, تو اس کو زیادہ سر پہ سوار نہیں کرو یا نکلو. وہی امی تو کہتی تھی شام کو تیار ہو جاؤ, اپنے میاں کے ساتھ جاؤ کہیں کھانے پینے پہ, بچوں کو بھی لے کے جاؤ نا. آپ کو ان چیزوں کو تھوڑا نارملائز کرنا پڑے گا. ہم نے ہر چیز کا ہوا بنا دیا. لیکن دیکھیں نارملائز کرنے کے لیے یو نیڈ اے سپورٹ سسٹم فرام یور سراؤنڈنگ ریلیشن شپس. اگر آپ پوسٹ مارٹم سے گزر رہے ہیں, اگر آپ کی ماں, بہن یا ایون husband especially, a lot of times women feel what I've heard from women کہ you know ان کو لگتا ہے کہ یہ شادی بھی میں نے اس آدمی سے کی, تو اب میں نے اس کا گھر سنبھال رہی ہوں, تو he is the culprit, اس کی وجہ سے پریگننٹ ہوئی, اس کی وجہ سے بچا. تو you know اگر آپ وہ اس کے بعد اس کی کیئر بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ کا ریلیشن شپ, آپ کا پھر ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس آدمی سے, because you feel کہ he doesn't care. نہیں بٹ یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں نا. اب دیکھیں آپ کو اپنے ہسبینڈ کو بھی وہی کاؤنسلنگ یہاں پہ آ جاتی ہے نا پھر ان باتوں میں ہی. But you don't want to teach this to your person. آپ کو اپنے میاں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے نا. اگر اس کی ماں نے اس کو نہیں سکھائی کوئی بات, لیٹ سے تو ماں کا فرض تھا نا بھائی. نہیں, تو اب انہوں نے نہیں سکھائی تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. پچھلی مائیں کوئی نہیں سکھاتی تھی. A lot of times no matter how much you communicate, what I've heard from women, میرا personal experience ہے نہیں, I'm not married, but بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ they don't have the sense to understand post partum, menopause even. No, this is, میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. مجھے جب لگتا تھا کہ کوئی چیز نہیں ہو رہی, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی تھی, بات کرتی ہوں. کئی دفعہ اس کو لگا کہ یہ
ऐसे कितना इतना ब्लंटली ऐसे कैसे स्ट्रेट बात कर रही है। लेकिन अभी फजीला जी जैसे आपने You see, कहा ना not कि जो everybody- आप every कैसे woman is भाई not जो that है वो थोड़ी वो वैसे भी सेंसिटिव है तो एक सेंसिटिव बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। नहीं लेकिन मर्द तो बाकी- मर्द ही होता है ना, उसको समझाना तो पड़ता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये वो मर्द है जो सुन ले वैसे ये अवार्ड देना चाहिए इन आदमियों को जो आपकी बात सुन लेते हैं, वरना अक्सर तो आप बात करें शुरू करें, अच्छा मुझे पता सुन नहीं लेते, उनको समझाना पड़ता है। अच्छा छोड़ो यार, हाँ नहीं नहीं आज ये बात नहीं करना, फिर I करेंगे। tell you, क्या a बकवास है। lot of men are not on that page even. उनको समझ आप ही नहीं उनको आ रही होती। लेकर भी आएंगे ना उस पेज पे, तो उनको तुम क्या हर वक्त ABC रोती नहीं रहती पता है, हो? उनको पता ही नहीं वो है। लोग हैं तुम क्या हर वक्त रोती क्या रहती हो, उनको पता मुसीबत नहीं- है। हाँ कि बच्चा पैदा कर लिया तो मेरी They're माँ ने भी तो not पैदा, aware हमने भी तो of पैदा it. किया ना, वो अजीब At बातें all. करते हैं। माओं को भी चाहिए कि अपनी बेटियों को ना रिलेटेड ये जो भी इश्यूज हैं हाँ। ये अवेयरनेस देनी चाहिए। देखिए, जो बहुत millennials- ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत देखिए, मिलनी आपकी चाहिए। मदर्स आपको वैसे हुआ डिफरेंट था? है। हाँ। हाँ जी मेरी लेकिन बड़ी बहनें थी इसलिए उन्होंने मेरी बहुत हेल्प कहते हैं अगर आपको वाकई कोई साथ में आपका फैमिली यूनिट बहुत अच्छा स्ट्रांग हो ना, जो आपका ख्याल करने वाला हो, वो आपको प्रॉपर बच्चा संभाल लिया तो आप औरत जो है उसकी नींद पूरी होगी, वो बच्चे को बता रहे कि नहीं तुम अकेली नहीं हो, हम भी, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो तुम्हारी जिंदगी थी वो तो गुजर गई, अब जो तुमने जिंदगी गुजारनी ना वो इसके लिए गुजारनी है। आता तो उस बेचारी को ना चाहते हुए भी वो ये सोच लेती है कि अब मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई नहीं क्यों सोचती है, नहीं सोचना चाहिए आजकल तो आपको इतनी दुनिया में चीजें। अच्छा दूसरी बात चले, हमें वैसे अल्लाह फजले जी सब बंदी थी स्ट्रांग हो ना, तो हमारे खवातीन बहुत स्ट्रांग नहीं चले इंपॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं। नहीं हमारे यहाँ खवातीन बड़ी स्ट्रांग है, सारे फैशन देखने आते हैं, उनको सारे वो डिजाइनरों के नाम और नंबर निकाल के ऑनलाइन ये वो सब कुछ अपनी आता है महरूमियां भी उन्हें। देख, ये वो ये भी तो देख तो लेती ये है, वो खुद ही देखें, कर सकती है, वो लोगों की compensation। देखती है। हाँ लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है सेल्फ केयर में, आपको अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। एक तो आपको अपने हर साल टेस्ट कराने चाहिए, जो कि हम में से कोई नहीं करता, एवरी 6 मंथ। बहुत कम लोग। चलो भाई अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप एक काम करें, एक जोड़ा ना खरीदें साल में 15,000 20,000 वाला, आप पूरे साल के अपने टेस्ट करा लें, जो बेसिक आपके शुगर का है, आपका लिपिड प्रोफाइल है, आपका जो 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें आपके मेमोग्राम्स हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ केयर की आप और सेल्फ लव की बात करते हैं तो पहले आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। हाँ ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वो एक ऐसा टाइम है ना कि जिसपे आप चाहते हैं कि आप ना ख्याल करें, हाँ अगले ख्याल करें, कोई ख्याल करे। ये बच्चे के बाद तो वो वाला टाइम होता है ना कि आप कहते हैं यार और मुझसे होता भी है। हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आपको रोना भी बहुत आ रहा है, आपकी बॉडी वैसे काम नहीं कर रही, आप कहते यार ये तो मेरी बॉडी मेरे तो कंट्रोल से बाहर होगी, वो बहुत सारी चीजें थी। तो आपको वैसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं हुआ, आपको कितने महीने की? बहनें थी ना मेरी, बड़ी थी, मैं सबसे छोटी थी, तो एक बहन है जो मुझसे बड़ी, उससे काफ़ी अटैचमेंट है मेरी, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी नॉर्मल रही। आपने वेट पुट ऑन किया था जब आप प्रेग्नेंट थी? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं किया था, और उसके बाद फौरन आपने फिर कम कैसे किया था? इतना ज़्यादा हुआ ही नहीं था, मैं नॉर्मल रही थी। जैसे मेरी वेस्ट जो है 24 में पहनती थी जीन्स, तो 25 हुई थी सर, तो वो मैं बड़ी हैरान होती थी। हाँ, 24 से 25 बस इतना ही हुआ था। भाई देखिए बात ये ना कि आप चले, आप नहीं हुई, आप एक गुड जीन्स कैरी करती हैं, बड़ी अच्छी बाय डिफॉल्ट। हाँ मैं खुश होती थी इस पे। नहीं लेकिन हो जाता है भाई, कम भी हो जाता है, सबका कोई ऐसा मसला थोड़ी होता कि, और मतलब आपको एक्टिव लाइफस्टाइल अपना रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने समझा ना कि जो मैंने कोई बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया है और ये बस अब मुझे रेस्ट करना है, आपका वेट तब बढ़ता है, फिर आप खाई जाते हैं, बैठे रहते हो, खाए जाते हैं। अच्छा मुझे लड़कियों की एक बात से बड़ा एतराज है। अच्छा वो जितनी भी सुन रही होंगी ना उन सबके लिए मेरा मैसेज है। मैंने फौरन तुम तो फौरन इसको सोच लो कि मैं क्या कहने वाली हूँ। एक बात तो ये कि जब उन्होंने शादी करनी होती है ना, अब उनका रिश्ता तय होता है, फौरन जिम ज्वाइन कर लेती हैं, फौरन डाइटिंग शुरू हो जाती है, स्किन केयर शुरू हो जाती है, हेयर केयर शुरू हो जाती है, खूब वेट कम किया हुआ बैठी हुई है शादी में, वलीमे में, तस्वीरों में स्लिम स्लिम। जैसे ही शादी हुई उसके बाद किसी तकरीब में गई तो ये मोटी जाके बैठती हैं डल्स। ये वही है खातून। ये अपनी केयर छोड़ देती है ना। मैंने इतनी लड़कियां ऐसी देखी और मैं उनको कहती हूँ खुदा के वास्ते मेंटेन कुछ ना करो, सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दे दे। टाइम ही नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं मिलता यार? नहीं सुनिए, पता है मुझे क्या लगता है, वही मैं अगेन ना एक्टिव लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ कि क्या होता है, शादी होते के साथ ही मुझे तो कुछ भी नहीं आता, काम भी कोई नहीं करना, मियां के साथ रोज बाहर खाना भी खाने जाना है, तो फिर ये तो होगा ना, फिर आप बाहर का खाना खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। यही होगा जब आप घर में बनाएंगे ही और घर में आप हिलेंगे भी नहीं। देखिए ये तो सच्ची बात है। कुछ बनाना आता है? मैं बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा बना, जबरदस्त। ये गवाएं कि मेरे घर आके अच्छा खाना एक तो लड़की में क्वालिटी भी होगी, खाना बहुत अच्छा बनाती है। इसको तो ऐसा तो नहीं होगा। इसको तो पर्शियन जो इरानियन कुजीन है वो भी आती है। ऐसा तो नहीं होगा शादी होने के बाद जब तुम जाओगी तो
तुम बताओगी 4-5 महीने तक तो मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं ऐसा है। उसको इतना देखो अच्छा ये शो जो है ना तुम्हारी मैं सास जो अपने है ना दोस्तों तुम्हें को निकाल के अपने दिखाएंगी। कोलीग्स को खाना बनाकर घर भेजती हूँ, मैं क्यों अपने घर जाने के बाद ये अच्छा चूल्हा ऐसे मुझे इस्तेमाल बताया कि आप तो मिक्स वो ना मिक्स ब्रीड है कि mixed अम्मी breed यहाँ है, के अम्मी जो है वो पाकिस्तानी और जो अब्बा है आपके वो पर्शियन है, ठीक है? तो कि जो पर्शियन आदमी भी वैसे होते हैं जैसे पाकिस्तानी आदमी की नहीं सुनते अक्सर वो बिल्कुल नहीं होते। आई टेल माई फादर, इतनी अच्छी आपने एग्जाम्पल मेरे जहन में बिठा दी है, बिकॉज देखें एक बच्ची जो है वो अपने फादर को देख के ही पूरी जिंदगी गुजार रही होती है, तो उसको लगता है ऐसा ही लाइफ पार्टनर होगा। बट व्हेन आई ऑब्वियसली यू नो आई स्टार्टेड डेटिंग, इंटरेक्टिंग विद मेन अराउंड, मैंने तो ऐसे करके सर ही पकड़ लिया, मैंने कहा ये मुझे कहाँ ले आए हैं ये लोग, ये तो वो दुनिया ही नहीं है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड, माई फादर इज वेरी फ्रेंडली, तो मैं उनसे बैठ के जब डिस्कस करती थी फिर उन्होंने मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली समझाना शुरू किया कि ये कल्चरल इशू है, इट्स कमिंग फ्रॉम द बैक, तुम इसका कुछ नहीं कर सकती हो, सर्टन थिंग्स तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, सर्टन थिंग्स को तुम चेंज करवा लेना, बट दिस इज हाउ इट इज, और कम विथ मी ईरान, चलो ग्रैब अ गाय फ्रॉम देयर। मगर वहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि अब चूंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ गुजारी है तो मुझे प्योर पर्शियन लाइफस्टाइल की भी आदत नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा देसी और पाकिस्तानी टच भी चाहिए होता है। सो दिस इज लाइक अ वेरी बिग कंफ्यूजन मध्या। ये मैं वाकई सोच रही थी कि ये अब इट इज वन ऑफ द मेजर इशू वेयर आई थिंक कि वो जो थोड़ा सा एक सिंकिंग और कनेक्टिंग का जो वो है ना वो थोड़ा सा बैरियर आ जाता है। अच्छा मुझे पता है पाकिस्तानी मर्दों में अगर वैसे बात करूं टॉपिक से हल्का सा हट जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा आपको मसला क्या लगता है कि क्या चीज़ पाकिस्तानी मर्द अगर इतनी अच्छी करने तो ज़बरदस्त मिसाली बन जाएंगे पाकिस्तानी मर्द? वो अगर ये अपने जहन से निकाल दें कि औरत हमेशा गलत ही होती है तो काफी चीजें सुधर जाएंगी। या और वो अगर मेरी अपने ज़हन से प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गुलाम। Exactly, मैं ये कहना चाह रही थी कि मिल्कियत समझना छोड़ दें अगर, I also think slavery. हाँ, कि अपनी They think मिल्कियत नहीं है। she's supposed to take my orders, she's supposed to change herself. Even अगर आप सही भी हैं ना और आप कुछ बता रहे हैं कि यार ये minors, normal कि you know don't do this, इसको ऐसे Now you're going to tell me. तो वो जो चीजें हैं ना वो आपको निकालने होंगे। हाँ, खुद जो भी वो गलती करें या कुछ भी करें तो वो कहते हैं हाँ हम तो मर्द हैं, हम कर सकते हैं। They're a little insensitive towards women. यूनिवर्सल प्रॉब्लम हाँ, यूनिवर्सल ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम। This is what I've noticed while interacting with Pakistan men. Persian men are very sensitive towards women. They feel कि औरत जो है वो एक सेंसिटिव, मतलब they care extra कि she is a woman. Like I've never seen मैं अम्मी और अब्बू कभी शॉपिंग पे जाएं, अम्मी ने कभी थैलियां उठाई हों। मेरी अम्मी को आदत ही नहीं है थैलियां उठाने की, वो अब्बू को पता है अब्बू ने टेक केयर करनी है इस चीज़ की। कोई भी ऐसा काम जो you know, जो बढ़ के अगर वो साथ हैं तो उन्होंने करना है, मतलब अम्मी को नहीं पता सब्जी गोश्त मुर्गी मछली कहाँ से आता है, क्योंकि वो दुकान पे गलियों में खड़े रखना is not in my father's thing. ये बेसिक डिसेंसी है। सेंसिटिविटी ना कि भाई आप एक औरत को धूप में खड़ा कर रहे हैं, वो गोश्त कटवा रही है। वेरी गुड। हाँ ये काम तो वैसे कुछ हम कहते हैं कि हाँ बंदों के मुझे काम ऐसे लगता है पाकिस्तानी आदमियों का क्या है कि वो हाँ तो क्या हो गया तुम कर लो, कि यार ये दिस इज नॉट माय जॉब। बाकी लोग भी तो तुम्हारी ड्यूटी है, वो खवातीन भी तो करती हैं जिनके घरों में मर्द नहीं है। मुझे ना कोई ड्रामा लिख लेना चाहिए, मुझे बड़ी बातें आती हैं। कभी कभी लगता है मैं शायद पुराने अच्छा वैसे सारे मर्द इतने बुरे नहीं होते, कुछ के साथ ही होता है कि वो बहुत काम भी कर रहे होते हैं। नहीं मैं भी एक बात कर रही हूँ, देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे भी तो उनका साइड लेना चाहिए ना। ये बेचारे इतने सारे मर्द जाते हैं अपने घरों से निकलते हैं काम करते हैं, तो कई दफा मैं और कुछ जगहों पे मैंने देखा भी है कि मर्द सुबह से काम करके रात तक घर पे जाएगा तो बेगम बैठी होगी एक लिस्ट बना के कि अब बाजार जाना है, ये चीजें भी आया है, वो अभी एंट्री तो होने दो, उसकी खाना तो दे दो, दफ्तर में बुरा दिन गुजरा, उसके बॉस से बड़ी बदतमीजी की है उससे। हाँ रोटियां ले या बच्चे को ले जाओ घुमा के ले आओ, बच्चे तुमने तो बच्चे को सारा दिन देखा ही नहीं। तो ये हमारी देसी औरतों में भी कुछ प्रॉब्लम है। इवन मैं उनको भी जानती हूँ जो देसी औरतें अमेरिका में रहती हैं, वो वहाँ रह के ना उनको राइट्स अमेरिकन चाहिए किसी और से, लेकिन जब स्टाइल जो है वो देसी चाहिए, देने की बात आ जाती है तो फिर वो देसी बन जाती हैं। फिर उनसे कोई काम नहीं होता। एज वो आपके सुबह सैलून में जाके बाल बन गए और दोपहर को आधा बटेर है वो कभी नहीं सुधरेंगे। और रात को मियाँ आया तो उसको बोला कि
ये मेरे अकेली के बच्चे थोड़ी हैं कोई, अब तुम संभालो, मैं तो पूरा दिन थक लोगों गई। को लग रहा होता है चाहे वो खवातीन हो चाहे बंदे हों कि वो जब काम पे है ना तो पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बड़े हंस रहे बड़े कह के, लेकिन ऐसे नहीं होता, भी काम होता है, नौकरी होती है। वैसे मर्द बेचारे, मैं तो हमेशा कहती हूँ बेचारे मर्द। ये सब शादीशुदा खवातीन को घर वापस जाना है। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, I'm just kidding, I'm just kidding. ऐसा भी नहीं। भाई मैं कहती हूँ ये मुझे बताएं